Well, gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes as directed by Higher Education Department, Punjab. Here I am Sharif Zahid, Assistant Professor of English from Govt Postgraduate College, Attock. Well, let us start from chapter 12. So he stayed on at Brookfield. He is Mr.Chips. Stayed on इसलिए कि उसके हेड ने उसे कहा था दैट यू शुड गो फॉर रिटायरमेंट और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसको सपोर्ट किया, इसलिए ही स्टेड ऑन एट ब्रूकफील्ड हैविंग एज लिटिल टू डू विद रॉल्स्टन एज पॉसिबल. मीन्स as far as duties are concerned, no more relation than performing duty. And in 1911, Ralston left to better himself. उसको अच्छी जॉब मिल गई. He was offered the headship of one of the greater public schools. इससे भी बड़े पब्लिक स्कूल की हेडशिप ऑफर हुई. His successor was a man named Chatris. उसके बाद जो आए चैट्रिस नामी बंदा, whom Chips liked. He was even younger than Ralston had been. With reference to age, ये उससे भी नौजवान हैं, 34. He was supposed to be very brilliant, बड़े काबिल at any rate. He was modern, natural sciences पढ़े हुए थे, friendly, sympathetic, recognizing in Chips a Brookfield institution. उन्होंने आते ही ये पहचान लिया कि मेरा सबसे जो एक्सपीरियंस टीचर है वो कौन है. सो ही courteously and wisely accepted the situation. So उसने कहा ठीक है, इन हालात में मुझे इतने एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत है. लेकिन in 1913 Chips had a bronchitis, a disease of the lungs, and was off duty for nearly the whole of the winter term. During winter term उनको ड्यूटी से एक्सक्यूज़ कर दिया गया. It was that which made him decide to resign that summer when he was 65. 65 के हुए तो he made up a decision कि it is better for me to resign from the service. After all, it was a good ripe age, 65. And Ralston's straight words had in some ways had an effect. Ralston ने भी सीधे अल्फाज में कह दिया था, लिहाजा वो इफ़ेक्ट भी था. He felt that it would not be fair to hang on if he could not decently do his job. अगर मैं प्रॉपर वे में अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर सकता तो मुझे चले जाना चाहिए. Besides, he would not swear himself completely. Swear means cut off, separate. और कौन सा मैं यहाँ से कट ऑफ हो जाऊँगा. He would take rooms across the road with the excellent Mrs. Wickett, who had once been लाइनन रूम मेड. इसी इंस्टीट्यूशन में लाइनन रूम की वो मेड सर्वेंट रही, तो उसी का फ्लैट है सामने, मैं रेंट पे ले लूँगा. एंड ही कुड विजिट द स्कूल व्हेन एवर ही वांटेड. जब मेरा जी चाहेगा आ जाया करूँगा. एंड कुड स्टिल इन अ सेंस कुड रिमेन अ पार्ट ऑफ इट. तो मैं स्कूल का हिस्सा ही रहूँगा इवन आफ्टर रिटायरमेंट. At that final end of term dinner in July 1913, Chips received his farewell presentations and made a speech. So उस end of term dinner पे इसको गिफ्ट दिए गए, farewell gifts. It was not a very long speech, but it had a good many jokes in it. As it was his habit, he used to cut jokes. And it was made twice so long because of jokes. लंबी हो गई स्पीच, perhaps by the laughter that impeded its progress. अभी बात चलती थी कि लोग हंस पड़ते थे. There were several Latin quotations in it. चिप्स ने अपनी फेयरवेल स्पीच में Latin quotations बोले, as well as a reference to the captain of the school who Chips said. स्कूल हेड के बारे में उन्होंने कहा कि had been guilty of exaggeration इन स्पीकिंग ऑफ हिज सर्विसेज टू ब्रूकफील्ड. कहते जी मैंने कौन सी खिदमत की है, ये एम ही एग्जेजरेट कर रहे हैं आपके हेड साहब. बट देन ही कम्स ऑफ एन एग्जेजरेटिंग फैमिली. कहते इसका कसूर नहीं है, इसका तल्लक ही एग्जेजरेटिंग फैमिली से है. आई रिमेंबर हैविंग टू थ्रैश हिज फादर फॉर इट.
मैंने इसके फादर को भी एग्जेजरेशन की वजह से पनिश किया था। आई गेव हिम 1 मार्क फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन, लैटिन ट्रांसलेशन में उसने 1 स्कोर लिया, एंड ही एग्जेजरेटेड द 1 इनटू अ 7, और इसके फादर ने 1 का 7 कन्वर्ट कर दिया। इस बात को सुनकर रोर्स ऑफ लाफ्टर्स एंड टमल्टस चीयर्स, सो चीयरिंग हुई। इट टिपिकल चिप्स रिमार्क, एवरीवन थॉट, हर कोई खुश था, सर की आदत है यूं एंजॉय करना। And then he mentioned that he had been at Brookfield for 42 years. My good God, कहता है मैंने 42 years इस अदारे में सर्व किया, and that he had been very happy there, और मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। It has been my life, he said simply, और वो कहता है यही तो ज़िंदगी है। Again he uttered certain Latin proverb, but after that he says, I need not of course translate, मैं नहीं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। I remember lots of changes at Brookfield. I remember the first bicycle. मुझे याद है कितनी changes आ चुकी हैं। First bicycle. I remember when there was no gas or electric light, and we used to have a member of the domestic staff called a lamp boy. उस ज़माने में इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, तो फिर भी हम स्टाफ में एक लैम्प बॉय हमारा स्टाफ मेंबर था। He did nothing else but clean and trim the light lamps throughout the school. ये उसकी ड्यूटी होती थी, सुबह आता, उन तमाम लैम्प्स की ट्रिमिंग करता, क्लीनिंग करता। I remember when there was a hard frost that lasted for 7 weeks in the winter term. इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई 7 weeks तक। There were no games and the whole school learned to scat on the fence. और हम स्केटिंग किया करते थे। 88 something. It is the story of 88 that was. I remember when 2/3 of the school went down with German measles. और बीमारी आई थी मीजल्स की, तो हमारी स्ट्रेंथ का 2/3 उसके शिकार हुई। एंड बिग हॉल वॉज टर्न इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड, हमारे ही हॉल को वार्ड में टर्न कर दिया गया था। आई रिमेंबर द ग्रेट बोन फायर वी हैड ऑन मैफकिंग नाइट। बोन फायर हम चलाया करते थे। इट वॉज लिट टू नियर द पवेलियन के करीब, एंड वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड टू पिट इट आउट। और फिर एक दफ़ा इतनी आग लगी कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। एंड द फायरमैन वर हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशंस एंड मोस्ट ऑफ देम वर इन अ रिग्रेटेबल कंडीशन। जाहिर है उनके लिए भी सेरेमोनियल ओकेजन था, और वो पिटिएबल कंडीशन में थे, मीन्स दे टुक वाइन। आई रिमेंबर मिसिस ब्रूल हुज फोटोग्राफ इज स्टिल इन द टक शॉप। मिसिस ब्रूल की फ़ोटो लगी हुई है। She served there until an uncle in Australia left her a lot of money. फिर उस वक्त तक उसने जॉब की, उसके एक अंकल उसके लिए ख़ासे पैसे छोड़ के फौत हुए। In fact, I remember so much that I often think I ought to write a book. मेरा जी चाहता है बुक लिखूं। Now, what should I call it? तो मैं इसका टाइटल क्या रखूँगा? Memories of Rod and Line, ये नाम रखूँगा। चीयर्स एंड लाफ्टर, लोग इस पे भी मुस्करा दिए कि अजीब नाम है। दैट वॉज अ गुड वन, पीपल थाट, सर यही रखें, वन ऑफ चिप्स, चिप्स के खूबसूरत लतीफ़ों में से एक, बेस्ट। वेल परहैप्स आई शिल राइट इट सम डे, कहीं मैं डायरी लिखना डालूँ, बट आई वुड रादर टेल यू about it really. I remember, but chiefly I remember are your faces. मुझे सारे स्टूडेंट्स भी, मास्टर्स भी याद हैं, और आई नेवर फॉरगेट देम, आई नेवर फॉरगेट योर फेसेस। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फेसेस इन माई माइंड, द फेसेस ऑफ बॉयज, स्टूडेंट्स के फेसेस। इफ़ यू कम एंड सी मी अगेन इन ईयर्स टू कम, फ्यूचर में जब आप मुझसे मिलने आएंगे, एज आई होप यू ऑल विल, उम्मीद है आप आएंगे, सो आई शिल ट्राई टू रिमेंबर दोज ओल्डर फेसेस ऑफ यूर्स। तो मैं आपको ग्रोन अप के तौर पे नहीं याद रखूँगा, बल्कि यंगस्टर्स के तौर पे। बट इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट आई शांट बी एबल टू, जाने मैं रिकॉल कर भी पाऊँगा कि नहीं। एंड देन सम डे यू विल सी मी समवेयर एंड आई शांट रिकॉग्नाइज यू। अगर किसी दिन हमारी मुलाकात हुई, मैं आपको ना पहचान सका, एंड यू विल से टू योर सेल्फ, तो आप कहीं ये ना कहें
द ओल्ड बॉय डजंट रिमेंबर मी। ओए बाबा जी को मैं याद ही नहीं आया। बट आई डू रिमेंबर यू एज यू आर नाउ। मैं उस ओल्ड एज में आपको क्यों याद रखूं, मेरे तो ये फ्रेश और यंग फेसेस हैं ना। दैट इज द पॉइंट, समझे ना। इन माई माइंड यू नेवर ग्रो अप एट ऑल। नेवर, आप नहीं बड़े होते, यानी स्टूडेंट स्टूडेंट ही अच्छे लगते हैं। Sometime, for instance, when people talk to me about our respected chairman of governors, जब लोग चेयरमैन ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, आई थिंक टू माई सेल्फ, यस, ए जॉली लिटिल चैप विद हेयर एंड स्टिक्स अप टू ऑन टॉप एंड एब्सोल्युटली नो आइडिया वट एवर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ जेरेंड एंड द जेरेंडेव। यानी उसको ग्रामर तो बिल्कुल आती ही नहीं थी और आज कितना तरक्की कर गया। वंस अगेन पीपल went for loud laughter. Well, I mustn't go on so all night. Why should I keep on speaking before you on this farewell night? Think of me sometimes as I shall certainly think of you. मुझे भी याद रखना, मैं भी आपको याद रखूँगा। Once again he uttered the same very Italian language and again I need not translate. कहते मैं क्यों बताऊँ मैंने क्या कहा। Much laughter and shouting and prolonged cheers after that. Then next August 1913 guzra. Chips went for a cure to Wiesbaden, where he lodged at the home of the German master at Brookfield. हैरिस स्टैफल एक ब्रूकफील्ड में पढ़ाते रहे हैं। चिप्स अपने क्योर के लिए गया वहाँ जर्मनी में, उसके यहाँ ठहरा। with whom he had become friendly, इसके अच्छे रिलेशन थे। स्टैफल was 30 years his junior, छोटा तो था, but the two men got on excellently, लेकिन गाड़ी छिनती थी इनकी आपस में। In September, when the term began, Chips returned and took up residence at Mrs. Wickett's. ट्रीटमेंट के बाद वापस आया, फिर यहाँ रहना शुरू किया। अच्छी सेहत की वजह से ही फेल्ट अ ग्रेट डील स्ट्रॉन्गर एंड फिटर आफ्टर हिज हॉलीडे एंड ऑलमोस्ट विश्ड ही हैड नॉट रिटायर्ड। सेहत इतनी बेहतर हो गई, कहते तो हाय मैंने रिटायरमेंट क्यों ले ली। नेवरदलेस ही फाउंड प्लेंटी टू डू, कहते चले बहुत काम है। ही हैड ऑल द न्यू बॉयज़ टू टी, ये उसकी हैबिट थी, तमाम यंगस्टर्स को इनवाइट करता था। ही वॉच्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रूकफील्ड ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में चले जाना। वंस अ टाइम ही डाइन विद द हेड के साथ खाना खाता, एंड वंस आल्सो विद द मास्टर्स पे स्टाफ के साथ। ही टुक ऑन द प्रिपरेशन एंड एडिटिंग ऑफ द न्यू ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी की खुद करेक्शन करता रहता। ही एक्सेप्टेड प्रेसिडेंसी ऑफ द ओल्ड बॉयज़ क्लब एंड वेंट टू डिनर्स इन लंडन, ओल्ड बॉयज़ क्लब का प्रेसिडेंट बन गया। ही रोट ओकेजनल आर्टिकल्स, कभी कुछ लिख देता, फुल ऑफ जोक्स एंड लैटिन कोटेशंस फॉर द ब्रूकफील्ड टर्मिनल मैगजीन, ब्रूकफील्ड का अपना मैगजीन शाया होता था। ही रेड हिज टाइम्स एवरी मॉर्निंग, टाइम मैगजीन पढ़ता वेरी थारोली, एंड ही आल्सो बिगैन टू रीड डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ता। ही हैड बीन कीन ऑन देम एवर सिंस हिज द फर्स्ट thrills of Sherlock की stories. Yes, he was quite busy and quite happy too. And a year later, in 1914, he again attended the end of term dinner. There was a lot of war talk, civil war in Ulster, and trouble between Austria and Serbia. Harris Steffel, who was leaving for Germany the next day, told Chips he thought the Balkan business wouldn't come to anything. कहता है ये जंग तो होके रहेगी, ये जंग टलती नहीं। थैंक यू वेरी मच।